A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed on lots of the theoretical and the practical concepts related to the second chapter of your syllabus, that is an accounting for partnership from fundamental. In the last video, we already discussed how we will find out the interest on drawing. And in today's video, firstly we solve the questions related to the interest on drawing. Thereafter, we will move to the revisionary notes related to the interest on drawing, and we see how we will find out the average period, and thereafter we will move to the very important part of this chapter, that is the rules regarding interest on capital, and thereafter we will move to the practical part of this chapter. So without getting in delay, let's discuss few of the important questions related to the computation of the interest on drawing. Out of them, we are also solved a few of the important practical questions. The question is very clear: compute interest on drawing at the rate of 6% per annum during a year ended 31st March 2020. March 2020. So the first information is given: and withdrew rupees 4,000 at the end of each quarter. Number second, B will be A withdrew rupees 4,000 at the beginning of every month during a period of 6 months. यानी A ने विड्रॉ किया 4,000 एट द बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब पूरा साल 6 महीने का है, 12 महीने का नहीं। और एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, दैट इज इन एम विड्रॉ रुपीज 5,000 at the end of every month during a period of 9 months. So it is a very clear information कि N ने withdraw किया 4,000 at the end of each quarter, A ने withdraw किया 4,000 at the beginning of every month during a period of 6 months, और M ने withdraw किया 4,000 at the end of the every month during a period of 6 months. और इसमें कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलेंगे, हम यहाँ we assume that कि ये 12 मंथ्स का ही है, तो एंड ऑफ द ईच मंथ का एवरेज पीरियड कितना होता है? एवरेज पीरियड अगर आपको पता है तो लगभग आप आधा क्वेश्चन सॉल्व करिए। एंड ऑफ द ईच क्वार्टर कितना होता है? 4.5। और अमाउंट को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं ये भी ध्यान रखना, एक साल में कितने क्वार्टर होता है? अच्छा, ए ने विड्रॉ किया 4,000 एट द एवरी मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो पहले अमाउंट को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6, क्योंकि हर महीने आप पैसा निकालें, 6 मंथ का ईयर है, 12 मंथ्स का बताओ। एंड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ के केसेस में यू नो वेरी वेल कितना था?
बिगिनिंग में अगर आप निकालोगे तो एवरेज पीरियड विल बी 3.5। ऐसे 9 मंथ्स के लिए हम लोगों ने बताया था आपको कैसे निकालने के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और एंड ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकालना। तो टाइम फर्स्ट पॉइंट कब किया होगा आपने, अप्रैल में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ होगा, लास्ट में कुछ भी नहीं, तो 8/2 इक्वल्स टू 4। तो इसका एवरेज पीरियड कितना आएगा 4। तो अगर आपको रैंडमली अगर एट द टाइम नहीं याद आ रहा है एवरेज पीरियड, तो आप फटाक से निकाल के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और 9 मंथ्स का है तो मल्टीप्लाई कितने से होगा, 9 से, और एवरेज पीरियड होगा 4। अब आधा का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ए के केस में, बी के केस में, सी के केस में। ए के केस में क्या होगा, 4000 इंटू 4 16,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना 6%, 6/100 इंटू 4.5/12। ओके। इन केस नंबर 2 4000 इंटू 6 इज 24,000। We solve the few of the important practical questions which are related to the interest on drawing. So calculation of interest on drawing. Let's we discuss about it, how we will find out the interest on drawing. Basically, you know very well what is the formula of interest on drawing. Interest on drawing equals to drawing into rate upon 100 into average period. Average period divided by 12. So the first question is, Pooja withdraw 12,000 during the year. P withdraw 12,000 during the year. अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इट इज नॉट क्लियर कि इट इज अ बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, बट इतना कर रहे हैं 12,000 ड्यूरिंग द ईयर निकालना है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी गिवन इन दिस क्वेश्चन इज 6% पर एनम। सो अगर P ने विड्रॉ किया 12,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ कोई भी क्लियर ऑब्जर्वेशन गिवन नहीं है। सो फॉर्मूला विल बी IUD इक्वल्स टू ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, और जब कुछ नहीं गिवन होता है तो 6/12 यूज करते हैं। ड्राइंग इज 12,000 ड्यूरिंग द ईयर है, तो कोई मल्टीप्लीकेशन भी नहीं होगा। रेट इज 6% इंटू 6/12, वेरी क्लियर, 2 3 360. So the first answer related to this question is 360. Number second situation will be of Ansh withdraw 4,000 at the beginning of every month. At the beginning of every month, यानी आपको हर महीने कितना निकालना है, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का ईयर है, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। जब कुछ नहीं बोलता तो वी एज्यूम दैट कि साल कितने महीने का है, 12 महीने का। तो पहले जब आप यहाँ फॉर्मूला लगोगे एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या लगेगा 6.5/12। इट मींस टोटल ड्राइंग 4,000 कितने मंथ्स का, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो मल्टीप्लाई कितने से होगा 12 से। रेट 6% और मंथ बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ मतलब 6.5/12। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 भी कट गया। अब आप चाहें तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी 40
into 6 into 6.5. 65 into 24. 65 into 24 is 1560. So this is an interesting drawing in the situation number 2. Next we take the one more question. Aditi withdraw, नाम चेंज कर देता हूं, X withdraw ₹5,000 at beginning of quarter. Each quarter, आप हर क्वार्टर में कितना निकाल लो, 5,000 रुपीज आप विड्रॉ कर दो. So आप हर क्वार्टर में 5,000 पैसा विड्रॉ करोगे, तो in this situation you know very well the formula of IUD will be interest on drawing into rate upon 100 into beginning of each quarter मतलब 7.5 upon 12. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर मतलब आप साल में कितने बार पैसा निकालोगे, 4 टाइम्स. सो 5,000 into 4 करोगे into 6/100 into 7.5/12 और जब इसको सॉल्व करोगे सो वी विल फाइंड आउट दी 750. So you can see that how we will find out the interest on drawing in the condition number 2. That is when period and the amount of the drawing are equal for the year. Okay. और सारे क्वेश्चंस भी गिवन है, उसको भी सॉल्व करिए कॉपी में. एवरेज प्रोडक्ट एंड एवरेज पीरियड में काफी डिफरेंस होता है, तो हम लोग यहां फाइंड आउट करने जा रहे हैं दैट इज एन एवरेज पीरियड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पीरियड? द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पीरियड विल बी अ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर last drawing, the whole divided by 2. यानी टाइम लेफ्ट है फर्स्ट ड्राइंग के बाद और टाइम लेफ्ट है लास्ट ड्राइंग के बाद, अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो इट विल बी नोन एज एन एवरेज पीरियड. लेट्स वी चेक अबाउट इट इन केस ऑफ द मंथली ड्राइंग. जब हम मंथली ड्राइंग को फॉलो करते हैं, वेट अ मिनट, so in case of the monthly drawing, you know very well the year is of 12 months: April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. So this is the first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Total 12 months are there. So monthly drawing अगर आप कर रहे हैं at beginning, अगर beginning में कर रहे हैं तो यानी आप हर महीने की किस तारीख को पैसा विड्रॉ कर रहे हो? on the first day of the month. So अगर आप पीरियड कैलकुलेट करो, फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. तो टाइम लेफ्ट कितना हो रहा है फर्स्ट ड्राइंग के बाद? फर्स्ट ड्राइंग आप कब करो? अप्रैल मंथ. उसके बाद कितना टाइम बच रहा है? दैट इज इन 12 मंथ्स. यस, कितना मंथ्स बच रहा है? 12. एंड लास्ट मंथ के बाद कितना मंथ बच रहा है? 1 डिवाइडेड बाय 2. सो 13 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6.5. सो यू कैन सी दैट बिगिनिंग में क्या होता है? बिगिनिंग में होता है 6.5. यस, आ गया समझ में? एंड का करेंगे मिड का? चलो मिड का कर देते हैं, सेटिस्फैक्शन रहेगा. 15 15 15, यहाँ पे 15 15 15, सारे 15 डेज डेट को आप ड्रॉइंग करोगे. तो अगर आप 15 डेट को अगर आप ड्रॉइंग कर रहे हो, इट मींस 15 अप्रैल फर्स्ट ड्रॉइंग होगी और लास्ट ड्रॉइंग होगी 15 मार्च. तो फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद कितना मंथ्स बचा? 11 कंप्लीट मंथ्स और अप्रैल का हाफ मंथ. तो कितने बचे? 11.5. 11 कंप्लीट मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 पूरे मंथ्स बचे, और लास्ट ड्राइंग कब क्या? 15 मार्च. तो 15 मार्च के बाद कितना महीना बचा? आधा 0.5. 12/2 = 6.
एंड का भी कर लेते हैं। अगर आप 30 यानी लास्ट डे निकालेंगे, सो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचेंगे? अप्रैल तो लास्ट खत्म हो गया, सिर्फ 11 बचेंगे। और लास्ट कब ड्राइंग क्या होगा? 31 मार्च। 31 मार्च यानी कि यहाँ पे कोई भी दिन महीना नहीं बचा, यानी 11.3 so you can see that how we will find out the average period in case of the monthly drawing. Let's we move to the next topic of chapter 2, that is an accounting of partnership firm fundamental, and it is a very important topic. Okay, so please note down rules regarding interest on capital. So let's we see that how we will find out the interest on capital and what are the different rules regarding interest on capital. Okay, basically you know very well what is the formula of interest on capital. The formula of interest on capital will be a amount of capital into rate of interest on capital into period, and this period will be depend upon the months and days, that is in months upon 12 or days upon 365. But here is some important rules regarding computation of interest on rule. So the first rule will be a IOC is payable only out of profit. यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं सिर्फ किस सिचुएशन में? व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। लॉस की सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते, बिकॉज IOC विल बी treated as appropriation out of profit. Point number 2, which are also related to the interest on capital. पहला पॉइंट क्या था कि IOC पेबल करते हैं सिर्फ प्रॉफिट से, यानी IOC को हम क्या चार्ज करते हैं? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, और इसे हम तभी प्रोवाइड करते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट होता है। लॉस के केस में हम IOC प्रोवाइड नहीं करते। नंबर सेकेंड, इफ प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, जैसे प्रॉफिट है 10,000 जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15,000, सो इन दिस सिचुएशन द अवेलेबल प्रॉफिट विल बी लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन दिस सिचुएशन जो अवेलेबल प्रॉफिट है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in their ratio of appropriation. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इन देयर रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटेंगे। यानी अगर प्रॉफिट हमारा कम है, IOC ज्यादा है, जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, here it is और PL एप्रोप्रिएशन है काम, ओके, और आपके पास नेट प्रॉफिट है 10,000, और जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट किया A और B का, तो A का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 15,000 और B का आया 10,000। सो यू कैन सी दैट आपको कितना IOC देना है? 25,000। दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे। तो सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालेंगे। एप्रोप्रिएशन का रेशियो क्या है? 3 और 2।
यानी आईओसी को हम लोग क्या करेंगे 3:2, यानी 10,000 रुपीज को जो अवेलेबल प्रॉफिट है यानी 10,000 को हम 3:2 में बांट देंगे, 3/5 2/5, यानी कि 10,000 को 3/5 एंड 2/5 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 6,000 एंड। तो हम बांट सिर्फ 10 ही जा सकते हैं, 10,000 से ज्यादा नहीं बांट सकते। तो 10,000 को हम लोगों ने क्या किया, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट दिया, दैट इज 6,000। ओके, rules number 3, rule number 3 will be if IUC is treated as charge against profit, अगर आईओसी को हमने क्वेश्चन में लिखा है क्लियरली, क्वेश्चन में इज क्लियरली मेंशन दैट इज एन आईओसी विल बी ट्रीटेड एज एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कि हमें आईओसी देना कंपल्सरी हो जाएगा। सो फर्म विल बी प्रोवाइडेड आईओसी इन फुल, तब उस सिचुएशन में उसे आईओसी पूरा का पूरा देना पड़ेगा, वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, यानी सिचुएशन में फर्म क्या करेगा, पूरा आईओसी प्रोवाइड करेगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। एंड नंबर 4, एन इंपॉर्टेंट रूल्स which are related to the interest on capital is that, और सबसे important rule is IOC is always calculated on opening balance of capital। आईओसी किस पे चार्ज होता है, हमेशा ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल के जो ओपनिंग बैलेंस है उस पे चार्ज होता है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल पे चार्ज नहीं होता। ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैपिटल अलोंग विथ एडिशनल एंड withdrawn amount of capital for time period। यानी आईओसी चार्ज होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे along with additional and withdrawn amount of capital, यानी कि उसके साथ साथ हम क्या ध्यान रखते हैं कि अगर कोई एडिशनल कैपिटल हो या हमने कोई withdrawn amount of capital किया है टाइम पीरियड के बेसिस, जैसे 6 महीने के बाद हमने पैसा लगा दिया, 6 महीने बाद पैसा निकाल लिया, उस चीज को भी कंसीडर करके हम आईओसी कैलकुलेट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन तो हम पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे फिर आईओसी कैलकुलेट करेंगे। तो उस सिचुएशन में ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बन जाता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, ओके, प्लस लॉस
Let's we solve the one questions which are related to the calculation of interest on capital. Okay. So let's we solve. The question is G and V Limited. G and V are partner in a firm. Capital account is 20,000, 15,000 respectively. During the year, G introduced additional capital 10,000 on August 1, 2017 and V introduced 15,000 on October 1, 2017. Calculate interest on capital if the rate of interest on capital will be at 6% per annum. So there are two partners, as you can see that is in G and V. And the opening capital on 1st April 2017 will be 20,000 for G and 10,000 for V. During the year उन्होंने क्या किया, कुछ पैसा इंट्रोड्यूस किया. G ने एडिशनल कैपिटल लगाया, एडिशनल कैपिटल मतलब इंट्रोड्यूस किया. कितना, कब इंट्रोड्यूस किया पैसा? On 1st अगस्त 2017 को जी ने कितना इंट्रोड्यूस किया? 10,000 और बी ने कितना इंट्रोड्यूस किया? 15,000. वो भी किस डेट पे? 1st अक्टूबर 2017. सो आपको आईओसी फाइंड आउट करना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. और एक बात याद रखना, जनरल एंट्री भी हम लोग फाइंड करना पास करें. तो ये इन्फॉर्मेशन, तो पहले आईओसी फाइंड आउट करते हैं. बेसिकली आईओसी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12 या डेज अपॉन 365. और इस सिचुएशन में पहले जी का देखते हैं. जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. शुरू में कैपिटल कितनी थी? 20,000. रेट है 6%. अप्रैल से लेकर अगस्त तक की कैपिटल उसकी कितनी थी? 20,000. अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, 4 मंथ्स का जो आईओसी वो कितने पे मिलेगा? 20,000 पे. एंड आफ्टर 4 मंथ उसने 10,000 एडिशनल कर दिया, यानी अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 20 + 10 30,000. ओके. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च फॉर 8 मंथ्स. सिमिलरली जब हम बी की आईओसी निकालेंगे तो पहले उसकी कैपिटल की 10,000, उस पर 6% से कितना? अप्रैल से अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर फॉर 6 मंथ. एंड आफ्टर 6 मंथ उसकी कैपिटल हो गई 25. कैसे? 10 पहले थी और 15 एडिशनल हो गया तो फिर 25. 6. यही रूल में बोला था, रूल नंबर 3 में, कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना होगा और ओपनिंग बैलेंस पे. लेकिन हमें साथ में ये भी देखना है एडिशनल कैपिटल हो या विड्रॉन है तो उसको कंसीडर करना है टाइम पीरियड की बेसिस पे. अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लो. 2 400 2 4 1200. सो जेड का आईओसी आ गया 1,600 रुपए. So this is an interest on capital of G and V 1600 and 1050. और अब क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करने को बोला है तो लेट्स बी पास द जनरल एंट्री. ओके, सो प्लीज नोट डाउन. So this is your homework to pass the journal entry of this question. Okay. In today's video, we discussed a lots of the rules regarding the interest on capital, and we can revise the how we will find out the average product, and at beginning we discussed the numerical questions related to the interest on drawing.
तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, टेक केयर, बाय.